Raj. We are privileged to have a distinguished guest, chief guest with us, Sri S.K. Raut, former DGP of Madhya Pradesh. He has consented to be here with us for this validation session. And firstly, I will invite Sri Sai Saab to please present book as a welcome gesture to sir, to our chief guest. And sharing the dais with our chief guest is Mr. Ritesh Ranjan. He is the Zonal Director and Director of CENC, Center of Excellence on Narcotics Control at CAPT. So again, I request Mr. Saib to please present bouquet to him as a welcome gesture. Now, to give a brief about the course and what the training has been imparted to the trainees, I'll request Mr. Saib to please present the brief about the course of this NCB. Over to Saib. थैंक यू सर। एनसीबी का जो कोर्स हुआ है, ये एनसीबी के जो प्रशिक्षु हैं, ये एसएससी के थ्रू कॉमन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट से पास होकर आए थे। जुलाई में उन्होंने ज्वाइन किया और 4 अगस्त 2025 को इनको सीपीटी प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। फर्स्ट 0 सप्ताह के बाद में 11 अगस्त से लेकर लगातार इनकी 26 अगस्त तक के प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रशिक्षण दिए गए। इंडोर ट्रेनिंग में इनको हमारे अतिथि व्याख्याताओं में और इन हाउस फैकल्टी ने इनको एनडीपीएस, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, माइनर एक्ट, साइबर एंड फोरेंसिक, सीसीएस रूल, सॉफ्ट स्किल, इंटेलिजेंस, कंप्यूटर आदि की ट्रेनिंग दी गई। आउटडोर ट्रेनिंग में इनको एयरपोर्ट विजिट कराया गया, कंसाइनमेंट कैसे आते हैं दिखाने के लिए। आरएफएसएल विजिट कराया गया कि ड्रग्स क्या होता है, सभी ड्रग्स इनको लगभग दिखाया गया। सर्वेलेंस ट्रेनिंग कराई गई इनकी ट्रांसपोर्ट नगर में, डीबी मॉल में, कि हम कैसे फॉलो करते हैं जो कंसाइनमेंट लेके आता है। इसके बाद में इनका आउटडोर टेस्ट हुआ, पीपीटी, परेड एंड फायरिंग। इनको सर हमने आखिरी में चार्जशीट बनाना तक सिखाया, ताकि ये जाके किसी भी अधिकारी पर निर्भर ना रहे, ये खुद अपनी चार्जशीट भर सके। इनको ऐसा प्रैक्टिकल सिखाया गया है कि ये किसी भी आरोपी पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई करके अपनी चार्जशीट बना के दे सकते हैं। ये रहा कोर्स। ओवर शर्मा जी प्लीज। Now, moving ahead, let me, before I invite Mr. Rajan to give a brief about this course, I'll read out the brief of Mr. Rajan to you. Sri Ritesh Ranjan, a CPF BSF officer of 2004 batch. Presently, he is Zonal Director NCB Indore and also looking after the Director of CNC CAPT. He has held successfully responsibility in his present department in various capacity and was always present for challenging assignment when the occasion demanded a mature and effective handling of the citizens. From border guarding to staff appointment, intelligence operative to instructional assignment, internal security duties to CI roles, in every sphere and field, he has served with equanimity and zeal. In NCB, his contribution toward narcotics control, narcotics coordination, capacity building, awareness and protection of ANTF templates are praiseworthy. He has also made substantial contribution in the field of intelligence collection, operation, enforcement,
investigation and administration. He has been bestowed with the various commendation and appreciation that include Police Antrik Seva Padak for JNK 2020, DGBSF Golden Disc, DG NCB Disc and Roll, DGs and DDGs NCB appreciation and commendation from Director CAPT, Chairperson of NCPCR. So now I request Ritesh to please give feedback or the brief about the course. Respected Sri S.K. Roth, ex-DGP MP, Chief Guest of today's valedictory ceremony, dignitaries from the CAPT on the dais, course participants, faculty staff, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. First, at the outset, I would like to congratulate you all on successful completion of this basic induction course that spans 21 weeks long training program from Center of Excellence Narcotics Control under the aegis of CAPT Bhopal. As far as this course is concerned, the course coordinator has already briefed about the participants as well as the dignitaries here, what all has been taught during the course. Now, you are in a stage, or rather I will quote, you are in a transition stage. You are going to transition from a trainee officer to the field officers as you are supposed to join your respective NCB zonal units. And I must remind that you are entering an area of law enforcement when you join the fields that is sensitive, complex as well as challenging and demanding. As Sub-Inspector NCB, you all are well aware, you will be frequently the first responder as well as the backbone of operations. You will be handling sources, conducting surveillance, you will be participating in raids, preparing case records and supporting prosecution while you are in the fields with different zonal units. Your professionalism at this level is going to decide about the success and failure of the cases. We all are aware that like in NDPS cases, procedure is substance. Even a good recovery may result in acquittal if the law is not followed in letter and spirit. Every seizure you make, every documentation you prepare, every arrest you made, it will be tested in court often years later. So, it is my earnest request to you all to keep on learning, develop a habit of meticulous documentation, factual accuracy and a strict neutrality. Let your work reflect your professionalism, courage and passion. Maintain integrity. That is one of the crucial aspects. Maintain integrity, adopt a zero tolerance towards corruption, uphold human rights and privacy while discharging your core functions in the ground. With the completion of this training, I am a firm believer that this training has not only contributed in gaining knowledge to you all trainees, but it also contributed towards acquiring or developing the mindset, discipline and resilience that is required to tackle the challenge of drug trafficking. I am hopeful as well as confident that the skills you gained here will help you or will enable you to operate in high pressure environments in the field as well as will enable you to make critical decisions and uphold justice and unwavering dedication. As far as the CAPT and CNC is concerned, I would also like to extend my commendations to the faculty staff as well as the officials from the CNC for their dedication, commitment, assistance and support that resulted into successful completion of this course today. Their efforts have ensured that you leave this campus better prepared for the responsibilities ahead. With these words, I wish you all the best for all your future endeavors. Jai Hind.
Now moving ahead, before I invite our chief guest to address the participant, let me give a brief introduction of sir to you. It's my privilege to introduce an eminent officer of the Indian Police Service, Sri Santosh Kumar Raut, former Director General of Police, Madhya Pradesh, whose career reflects outstanding leadership, integrity, and dedication to the public service. Sir joined the Indian Police Service on 16 July 1974 and served in a wide range of field and command assignments in Madhya Pradesh, beginning as Assistant Superintendent of Police and later serving as Superintendent of Police in important districts such as Rajgarh, Shivpuri, Khargone, Ratlam, and Indore. Sir also held key headquarters and intelligence positions including AIG Special Branch, AIG CID, Additional Director General of CID, and Intelligence at Police Headquarters Bhopal. At the national level, Sir has served the Government of India as Deputy Director at the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, where he made significant contribution to the police training. He later served as DIG and Joint Director in the Central Bureau of Investigation, handling complex and high-profile investigations relating to the economic offence, bank frauds, and drug-related cases. Sir rose to the highest rank in the State Police as Director General of Police Madhya Pradesh from 2008 to 2012 and continued to serve public institutions even after superannuation as member and acting chairman, Grievance Disposal Authority, etc. Sir, international exposure include a training of trainer program at Manchester University and observation of police training institution in the United Kingdom. In recognition of his distinguished service, Sir has been awarded the Indian Police Medal for Meritorious Service, the President Police Medal for Distinguished Service, and SIMAS Medal for Government of Madhya Pradesh. With his vast operational, investigative, and training experience, Sri Santosh Kumar Raut is a source of inspiration for all of us. Now, may I request sir to please address the gathering, sir. Over to you. Good morning to everybody present here. Good morning. Honorable Sharma ji, Nitesh Ranjan ji, and Ahmed sir. All my young friends present here, those who are passing out today from this CAPT, and I believe some of the guests are also here. So I pay my regards to all the guests who are present, about candidates. Mr. Ahmad has very kindly permitted me to speak both in English and Hindi. So I will use both the language in the course of my talk. So really I am very happy to be with you here today, because I remember my days of passing out long back. I joined the service in 1974 when I was 22, and from there on I served for 38 years in different capacities in Madhya Pradesh Police and also in Government of India. But I never forget this day of passing out. It's a very memorable day for every one of you, because from here you will land up in the thick of duties, responsibilities, and also the larger aspects of life. And probably it will start in a few days. From here, some people get some leave, somewhere leaves are not permitted. So I don't know your situation, but most probably you will straight away go and join your services. So I want to point out a very significant thing, which is your institute CAPT must have equipped you with all this knowledge and skills, knowledge of different laws, particularly NDPS, and also other laws, maybe partly the new laws of IPC and CRPC, and along with that the skills required for the search, seizure, and all these handling directly, practically, the skills that are required for this.
So you have all the competencies now for skills and also required knowledge. Along with that, most important is the attitude. The third part, which is attitude. Actually, at this stage, at your age and stage, it is not really possible to impact attitudinal training here completely, because most of the attitude training is at your home, in your family, in your school, and in the process of growth when you have become a full-fledged citizen of this country. I mean, by 21, your attitude is mostly formed. So now this is only a icing on the cake, whatever they might have done in the CPT. But attitude is most important. Why I am saying, with knowledge and skill, most of you are almost same. There may be a little difference. Some are more skilled, some are a little more knowledgeable, some may be getting the awards and prizes, etc. Some may not be getting. But that's not very important in the larger aspects of your duty and life. What is most important is your attitude. Regarding attitude, I will give you two examples. एक एग्जाम्पल तो ये है कि मैं जब नेशनल पुलिस एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर था, तो ये एटीट्यूड वाला पार्ट मेरे पास था, जिसमें मैं क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ाता था और साथ साथ एथिक्स भी पढ़ाता था. तो as you all know, बिहेवियर जहाँ तक सवाल है, what is behavior? Definition of behavior of a person or behavior of any organism is the response to the stimuli received from either external sources or from internal sources. Means internal, your own body sometimes. अगर मच्छर बैठ गया तो आप सीधे हाथ उठा के उसको एक थप्पड़ लगाते हैं. आपको ये नहीं मालूम ऐसे क्यों हुआ, किसने इसको कंडक्ट किया, हाथ क्यों उठा, हाथ क्यों उसको मारा, क्या किया. ये अपन इसी का जो पार्ट पढ़ते हैं वो बिहेवियरल साइकोलॉजी में आता है. तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये बिहेवियर के बारे में जरूर आप थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, इसलिए कि एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. और एटीट्यूड फॉर्मेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इसलिए कि एटीट्यूड का मतलब ये है कि एटीट्यूड से आप अपने सबऑर्डिनेट से डील करते हैं, अपने सीनियर से डील करते हैं, अपने कलीग से डील करते हैं, और आप समाज में भी डील करते हैं अपने एटीट्यूड के आधार पर. तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन जो है वो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पीपल फ्रेंडली बनाता है या आपको ऐसा देखता है कि ये बिल्कुल एक किस्म का असामाजिक तत्व बन जाता है. तो मैं जो आपको बता रहा था, एनपीए में मुझे ऐसा एक ऑफिसर जिसको हम लोगों ने ट्रेन किया था, तो वो केरला पोस्टिंग हो गया. वो केरला पहुंच गए, और जब केरला में थे तो वहाँ से मैं उस समय एनपीए में था, तो ऑब्जेक्शन ये आया कि साहब ये ऑफिसर की एटीट्यूड बहुत ख़राब है, ये यहाँ पर ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, ना ये आदमी ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया जाए. यहाँ तक रिकमेंडेशन आया. तो डायरेक्टर उस समय एक मिस्टर शंकर सेन थे, आप शायद सुने हो नाम उनका, बहुत पुलिस किताब उनके नाम पे. तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तुम जाओ वहाँ केरला और जाके इसको देखो ये क्या कर रहा लड़का वहाँ, क्यों ऐसा इसका हालत हो रहा है. तो मैं वहाँ गया और उसको बुलाया, बात किया. तो उसने बोला साहब मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. मैंने कहा अच्छा लगने ना लगने का मतलब क्या है, नहीं तुम तो आए हो यहाँ जब अपना जॉब करने के लिए और स्वेच्छा से ज्वाइन किए हो, स्वेच्छा से तुमने शपथ लिए हो, संविधान का शपथ लिए हो, और यहाँ स्वेच्छा से आए हो, स्वेच्छा से जब, और तुमको अच्छा लगना ना लगना ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है तुम्हारी पर्सनैलिटी का. इसको तुम आगे फ्रंट पे लाओगे तो ये तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा करेगा. अगले दिन सुबह जब हम वहाँ एक साइकिल करके गेस्ट हाउस है त्रिवेंद्रम में, तो उस गेस्ट हाउस में वहाँ रुकवाते हैं जो भी जाता है. तो वहाँ के जो नेता लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी वहीं आते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने. हम लोग भी वहीं जाते हैं ब्रेकफास्ट करने. तो बैठे तो ये सब नेता लोग ये वो सब वहाँ बैठे हैं, सब धोती पहनते हैं वहाँ. तो धोती के साथ वो लोग अपना
जिसको लुंगी जैसा यूज करते हैं, वहाँ बैठ के नाश्ता करते समय, उसमें मिनिस्टर्स भी हैं, एमएलएज भी हैं, दूसरे लोग हैं, और सब लोग अपना प्रॉपर ड्रेस में हैं। ये ऑफिसर जो है ये अपना शॉर्ट्स में और पीटी शूज में और बिल्कुल मतलब झिलमिल टाइप का कपड़े है। ऐसे कोई कपड़ा क्या पहने उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप वहाँ मर्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो लोग साथ में या जो लोग बैठे हैं एकदम अलग से दिख रहे हैं, जैसे कोई दूसरे एलियन जो है किसी और ग्रह से यहाँ पहुँच गया है, उस टाइप का सीधे पहुँचे। और उनकी जो मैनर्स, हाथ हिलाने का तरीका, चलने का तरीका, बिहेवियर, तो वो सब ऑफेंसिव था, वहाँ के पूरी क्राउड के लिए ऑफेंसिव था। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने उनको वही बात जो है उनको बताया। मैंने कहा भाई तुम थाईकोट गेस्ट हाउस में आते हो, यहाँ इनकी पूरी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सब यहाँ पे प्रेजेंट है, सीनियर ऑफिशियल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे आने के लिए एक अनरिटन ड्रेस कोड है। ये रिटर्न नहीं है, फॉर्मल नहीं है, लेकिन एक ड्रेस कोड है। और वो ड्रेस कोड जो है इट इज पार्ट ऑफ योर एथिक्स। और किस बात की एथिक्स हम पढ़ाते हैं? एथिकल बिहेवियर जो पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, एथिकल बिहेवियर यही तो है कि भाई आप इन साधारण छोटी छोटी चीज़ों को समझदारी से ले रहे हो या नहीं ले रहे। तो समाज से कैसे डील करोगे अगर आप समाज को नहीं समझोगे, लोगों के बिहेवियर को नहीं समझोगे, और किस टाइप का, तो कैसे आप और आपकी जॉब तो सबसे कठिन है। एनडीपीएस एक्ट के तहत द मोस्ट डिफिकल्ट एक्ट आई मस्ट से। और एनडीपीएस एक्ट में जो आपको जो प्रोसीजरल वो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको मालूम है। अभी अभी एक जजमेंट आया है इंदौर हाई कोर्ट का, अगर आप लोगों ने देखा हो। इंदौर हाई कोर्ट ने एनडीपीएस के केस में जिस ऑफिसर ने उसकी जांच की थी, उस ऑफिसर को सस्पेंड कोर्ट ने किया। ये नहीं कि कोर्ट के आदेश से या उसके सीनियर अफसर करे, नहीं, कोर्ट ने डायरेक्ट उसको वहीं से सस्पेंशन का ऑर्डर किया, और उसकी जो बाकी लोग थे इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करने के लिए ऑर्डर दे दिया। जनरली ऐसा होता नहीं। जनरली कोर्ट और आपके संस्था को बताता है, आपके जो भी ऑफिसर्स हैं, सीनियर अफसर, उनको बताता है, वो लोग करते हैं ये काम। लेकिन कोर्ट ने डायरेक्ट किया, इसलिए कि एनडीपीएस एक्ट इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एक्ट। ये आपको पहले ही आपको मालूम होगा। तो आपका सेक्शन 41, 42, फिर 50, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट 59, जिसमें आपका कल्पेबल, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड यू मे बी क्रिमिनली प्रोसीडेड अगेंस्ट इन दैट सिचुएशन। तो इस टाइप का स्ट्रिंजेंट एक्ट में डील करते समय यू कैनॉट हैव ए कैजुअल एटीट्यूड, यू कैनॉट टेक इट वेरी इजी कि मैं जैसा चाहूँ ऐसा करूँ, या मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ, अगर सर्विस में आ गया अब तो मेरा जो है मतलब अपने अंदर जो एक ईगो आता है, उस ईगो को कैसे डील करना है, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है। आपको इस ईगो का शिकार कभी नहीं होना है। मैं जो है अब तो आई कैन बिहेव विथ एनीबॉडी लाइक एनीथिंग, वो नहीं, वो गलत है। और अभी से समझ में आ जाना चाहिए ये गलत है, और उसी हिसाब से यू शुड अमेंड योर बिहेवियर विथ पीपल कि सही ढंग से पेश आए, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, चाहे बॉस हो, चाहे साधारण पब्लिक हो। हाँ, जहाँ आप इतना शार्प हो, your brain should be functioning so quickly that you should realize if somebody else is lacking in behavior or lacking in attitude, then how to tackle him. तो उसमें आपकी विट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बाकी चीज़ें वहाँ जरूरत पड़ेगा, आपकी स्मार्टनेस का। उसको स्मार्ट बोलते हैं। अपनी दिखावा करने में स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस जो है अपर चैम्बर का है। अपर चैम्बर अगर ठीक से काम कर रहा है then you are really smart. You are not smart because your clothes should be correct. It doesn't mean your clothes should be
remarkable so that others can. You are not in a show business. We are not in entertainment business. So we did not show ourselves by our coat or by our tie or by our dress. Our job is to impress by our brain ability. So you have to train your brain. So that aspect one has to study and see, and then only you can become more successful in your job. Otherwise, what happens? This kind of things happens. Another thing I try to tell you, in the institute itself, in National Police Academy, when I was a deputy director, I will not name, but one of our directors had very, very difficult attitude. Because of its attitude, there was total discontent among the probationers because of the director's tremendous strictness. भयंकर व्यक्ति थे वो. उनके ये है कि आप एक गेट पे रजिस्टर रह गया, एक ऑफिस में, मेस में, सब जगह. जब आप गेट से बाहर किसी काम के लिए जाएं तो वहाँ पे साइन करें उस रजिस्टर में. आप कितने बजे तक रात को अपने कमरे में आ गए हैं उस बात, क्योंकि आजकल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, पहले ये माउंट आबू में हुआ करता था. तो हैदराबाद में बहुत सारी एंटरटेनमेंट सोर्स है, तो लोग इसलिए कई सारे प्रोफेशनल भाग जाते हैं. कई अपने नए नए शादी होता है तो पत्नियों को लाके आसपास में कहीं वहाँ रहते हैं, या फिर कोई लेडी अफसर हो तो उनके हस्बैंड रहते हैं तो वो उनसे मिलने करने चले जाते हैं. तो इन्होंने रजिस्टर रख दिया, जब जाओगे साइन करोगे, जितने बजे आओगे साइन करोगे. वो भी वहाँ पे एक ऑफिसर रहता था, उसके पास में साइन करके आना जाना होगा. इसके अलावा उन्होंने एक मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन वो करते थे. तो वो ये करते थे कि जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे या जो भी अपना आउटडोर एक्टिविटीज है वो जब खत्म हो जाए, वहाँ सुबह शुरू हो जाता है 7 बजे करीब, ये सब शुरू हो जाता है, खत्म होता है करीब 8:30 बजे. तो 8:30 बजे लोग थके हुए एकदम अपना वो कपड़े वपड़े निकाल के बूट वूट फिर आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में, ब्रेकफास्ट पे कूद पड़ते हैं. लेकिन इन्होंने ये कर दिया कि भाई आप जो है सीधे वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट ना करते हुए आपको मेडिटेशन कराया जाएगा. तो वो मेडिटेशन करीब आधा घंटे का, उस कोई सहज साधना ग्रुप या कुछ है, तो उनके मेडिटेशन सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया. इस बात से बड़ी नाराजगी हो गई प्रोफेशनल से, मेडिटेशन कोई करना नहीं चाहता था. तो एक और इन्होंने किसी को कुछ कह दिया, ये सब बात को लेकर रात को उन्होंने खाने पे स्ट्राइक कर दिया. किसी ने अपना मील खाया नहीं, पूरी रात को उपवास रहे. तो ये सब जब हो गया, जो उस समय DDBC बोलते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बेसिक कोर्सेस, उसको चेंज करके मेरे को DDBC बना दिया. पता नहीं कोई जो भी उनको बताया हो. तो फिर DDBC बनने के बाद अब ये मेरा वो रहा, बात रहा प्रोफेशनल्स का मेरा. हमने उनको कहा कि भाई ये अगर डायरेक्टर कहते हैं मेडिटेशन के लिए, आप तो मेडिटेशन इतना थके हुए आते हो और सीधे जाते हो ब्रेकफास्ट टेबल पे. इसमें क्या है कि ज़बरदस्ती जहाँ 4 ब्रेड खाना है तो आप 8 ब्रेड खा लेते हो. बीच में अगर ये मेडिटेशन रहेगा तो आप अपना मेडिटेशन करो. यहाँ तक थोड़ा बहुत मुझे गड़बड़ भी करना पड़ा कि मैंने कहा जिसको चाहे वो सो जाओ. वो जो आधा घंटा टाइम मिला तो आंख बंद करो. कौन आंख तो खोलता नहीं है, कौन देखेगा? वरना साहब वो डायरेक्टर साहब देखते हैं आंख खोल. मैंने कहा वो देखेंगे तो मैं उनको देखूंगा, क्योंकि उनके जब आंख बंद होता है या नहीं मैं देखूंगा. सर आप नहीं बंद कर रहे हैं तो बाकी लोग कैसे करें? तो इस तरह मतलब इट्स मैटर ऑफ हैंडलिंग. तो उनको समझाया, इधर इनको समझाया, तो काफ़ी बातचीत होने से फिर ये वाला प्रॉब्लम खत्म हुआ. मेडिटेशन अपने प्रोफेशनल्स ने करने लगे और वो ठीक ठाक चलने लगा. तो ये जो एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम है, इट क्रिएट्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, unnecessary situations which affect the efficiency of the organization, not only individually but also collectively. तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आपके आगे के एटीट्यूड के लिए. और जहाँ तक NDPS एक्ट की सवाल है, स्ट्रिंजेंट जैसे मैंने कहा, वो इसलिए है कि NDPS का रूप क्या है आप सबको मालूम है कि भाई ये जो दूसरे जैसे एक्ट्स होते हैं उसके टाइप का नहीं है.
ये जो ड्रग मनी है ये कितना बड़ा, द टाइप ऑफ मनी विच इज ड्रग मनी दैट ऑल ऑफ यू नो इट अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड एंड इट्स नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया अलोन, इट्स अ प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री. और द 1 kg of opium which you purchase in Mandsaur or Nimach or Ujjain or Ratlam, when it comes out and goes into the international market, say to America or Europe or to Southeast Asia, then it becomes that few thousand of rupees which you spend on purchasing, it sells in crores of rupees. So this is the difference, that the money expands or exponentially it increases. So therefore, and what happens to this money? All of you know what happens to this money. This money not only affects the public health, it affects the social cohesion, it affects the economy of the country, it affects all aspects of life. So therefore NDPS is so important. And as you know, not only into illegal channels भी आता है. इलीगल चैनल में आपको मालूम है कि ये ड्रग मनी से इसकी जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला से, साथ में ये जुड़ा हुआ है आपके काउंटरफिट करेंसी बनाने में, उसके डील करने में, ये जुड़ा हुआ है इलीगल क्रिमिनल कार्टेल से ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, एंड इट्स ए वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन. और फिर इसके अलावा जो लीगल चैनल से वही ड्रग मनी फिर आता है आपके रियल इस्टेट में, वही आता है ट्रांसपोर्ट में, वही ड्रग मनी आता है आपके एंटरटेनमेंट में, क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में. ऐसा कोई एस्पेक्ट सोशल लाइफ का नहीं रह जाता जिसको ये अफेक्ट नहीं करता. और यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको पंजाब का. पंजाब में क्या होगा, इसने हमारी पूरी समाज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वहाँ का यूथ को डिस्ट्रॉय कर दिया है. जो यूथ बैठ के साधना करना चाहिए अपने आप को आगे, देश को आगे ले जाने के लिए, अपने को आगे ले जाना का मतलब ही देश का आगे ले जाना है. आप आगे बढ़े, आप अच्छा करें स्पोर्ट्स में तो देश आगे बढ़ता है, आपका नाम होता है, देश का नाम होता है. और आपके NDPS में अगर किसी ने अच्छा कर लिया, वर्ल्ड वाइड उसके लिए रिवार्ड है. आजकल बहुत सारी रिवार्ड है, बहुत सारी पोजीशन से, बहुत सारी ट्रेनिंग से जिसके लिए वो जा सकता है. तो मेरा कहना है पंजाब का यूथ को इतना डैमेज कर दिया है जो दोबारा उठ के बैठना मुश्किल हो जाता है. और वहाँ आपको मालूम है कैसे ड्रग आता है, ड्रोन से आता है. उस गांव से इस गांव को ड्रोन से भेज देते हैं ट्रक, और जिनको जानकारी है वो वहाँ से उठा के ले जाते हैं. तो ये सोशल एस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट करता है. इसमें मैं 2 उदाहरण छोटे छोटे दूंगा. मैं इंदौर में SP था 87-88 लॉन्ग बैक, तो तब की बात कर रहा हूँ. तब जो है 2 घटना बताता हूँ. एक घटना में मैं एक दिन बैठा था ऑफिस में, एक व्यक्ति मेरे पास आए, थोड़ा एजेड थे, और वो इंदौर के सराफा के थे, और वो सोना चांदी वगैरह का व्यापार करते थे. और मेरे ऑफिस में आए और रोने लग गए और पाँव पकड़ने लगे. मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या, क्यों हॉस्पिटल से? कहता साहब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरा बच्चा को मार डालो. मैंने कहा क्या फालतू बात करता है, बच्चा को क्या मार डालो, ये क्या मतलब है? बोला साहब उसने ऐसी हालत हमारी बना रखा है. वो रो रहा था और आंखों से मतलब आंसू निकलता जा रहा है कि साहब मैं हम करें क्या करें, एक ही बच्चा है और वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है. मुझे और उसके माँ को घर में रहना मुश्किल है. हम लोगों के साथ मारना पीटना सब कुछ करता है, एक पैसा घर में रहने नहीं देता है, सब निकाल के ले जाता है. क्या क्या करता है. और कभी कभी वो इतना वायलेंट हो जाता है कि उसको कोई नहीं संभाल सकता है, 4 लोग भी संभालना मुश्किल है. तो इसको मैं सब रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस को, बोलो मार दे इसको. मैंने कहा ऐसे नहीं मार सकते, मर्डर में हम फंस जाएंगे. तो ये तो मारना ऐसा थोड़ी है कि किसी व्यक्ति को मार दें, चलो हम देखते हैं उसको. तो उस समय किरण बेदी का नाम आपने सुना होगा, वो एक जीवन ज्योति चलाती थी. ये ड्रग अफेक्टेड लोगों का केयर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए वापस जीवन ज्योति संस्था चलाते थे. मैंने उनको फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया, तो फिर इस लड़के को हम वहाँ पे भेजा
जीवन ज्योति ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा उदाहरण ये है कि इसी टाइप का वहाँ पे बहुत सारे चेन स्नैचिंग होने लगा शहर में, इंदौर में। लोग स्कूटर में जाएं और मोटरसाइकिल में जाएं और महिलाओं के गले से चेन छीन के ले जाएं, और एक एक चेन जो है बहुत पैसा देता था, सोने का चीज़ जो है, तो इसलिए उनको पैसा चाहिए। तो हमने इसको चेन स्नैचिंग को पकड़ने के लिए काम किया। ये ड्रग्स में नहीं मतलब था, चेन स्नैचिंग क्या है उस करने के लिए ट्रैप लेआउट किया कि भाई इसको कैसे पकड़े। तो करते करते 2-4 को पकड़ लिए। जब पकड़ के उन सबसे इंटरोगेशन हुआ तो डिटेल्ड इंटरोगेशन में पता चला कि ये सब ड्रग लेते हैं, और ड्रग लेने के कारण इनको पैसे की कमी पड़ता है। जो इनका वो रहता है, हैंडलर रहता है, वो कहता है कि पैसा कहीं से लेके आओ। तो ये तरीका उन्होंने उस समय निकाला था कि चेन छीन लो तो एक साथ थोड़ा पैसा हाथ में आ जाता है। तो ये चेन छीनने का तरीका, और हम करीब 11-12 आदमी को, लड़कों को पकड़ा, सब यंग थे, सब कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करते थे। और जब पता चला ये सभी अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों का थे। इंदौर के जो प्रतिष्ठित परिवार है, एक तो जो सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर वहाँ के हॉस्पिटल का, उनका लड़का था। कई सारे बड़े व्यापारियों के लड़के थे जिनके मतलब घर में अथा पैसा है, तो उन लोगों के बच्चे थे। ये सबको पकड़ के जब इंटरोगेशन किया तो पता चला कि ऐसे ऐसे लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और घरों में इन लोगों से सबको प्रॉब्लम है। सबका अजीब सा बिहेवियर है। कोई 10 कुत्ता पाल रखा है, कोई कुछ करता है, कभी भी पीटता है, माँ बाप को पीटना शुरू करता है। वो किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कि हमारा बच्चा हमको पीटता है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है वो टूट जाता है। समाज में आप देखो, एक पिता कभी आके अपने बेटे को कहेगा इसको मार दो, आप सोचो समाज व्यवस्था कितना खत्म हो गया वहाँ। जो जिस आधार पे हमारी व्यवस्था बनी हुई है वो खत्म हो गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट दिया, इसको ठीक करने के लिए दिया। तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है। ये हमारी इकोनॉमी को भी बिगाड़ता है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है, हमारी जिंदगी को बिगाड़ता है, पब्लिक हेल्थ को बिगाड़ता है। और ये ड्रग मनी जो है, ये जब एंटर करता है लीगल चैनल्स में, ये उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। डिस्टर्ब करता है मतलब उथल पुथल कर देता है। जो बिल्कुल नीचे बैठना चाहिए उसको उठा के आसमान पे पहुंचा देता है। जो पढ़ाई के समय पास ही नहीं कर पाता था, वो आदमी आज बड़ा आदमी बन के बैठा हुआ है, रियल इस्टेट में डील कर रहा है और करोड़ों में लाखों में कमा रहा है। और जो बेचारा पढ़ के फास्ट होता था वो पता नहीं कहाँ है, उसका पता नहीं चलता है। तो ये प्रकार का स्थिति का जो है, इसका भाग्य विधाता जो है आप है। आपको इसको कंट्रोल करने के लिए ये देश और ये संविधान ये दायित्व तो आपके ऊपर दिया है कि इसको आप संभालो। तो इसको संभालना का दायित्व जिसके ऊपर है, तो उसके लिए धाराएं भी उसी प्रकार आपको दिया हुआ है। एनडीपीएस है, वो आपने पढ़ा भी होगा। तो उसी प्रकार धाराएं दिया है जिसमें आपको कंट्रोल करना है। लेकिन अगर उसमें कोई नेग्लेक्ट आपने कर दिया, चाहे वो पुलिस में हो, बीएसएफ में हो, आईटीबीपी में हो, दूसरे पुलिस में हो, अगर एक बार नेग्लेक्ट कर दिया तो इतना ज़्यादा गंभीर डैमेज नहीं होता है वहाँ पे। यहाँ आपको पावर भी बहुत दिया है, आपके ऊपर ये दायित्व नहीं दिया कि आप चीज़ों को प्रमाणित करें। ये जो बर्डन है, इट डजंट लाई ऑन यू, इट लाइज ऑन द अदर पार्टी। बाकी में उल्टा है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है दैट इज ऑन द ऑफिसर टू प्रूव टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो आपके लिए नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपको प्रूव नहीं करना है, उसके ऊपर है। तो ये एक्ट जितना पावर आपको दिया है उतना ही आपको बांध के भी रखा है कि आप गड़बड़ी, प्रोसीजरल गड़बड़ी में आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो आपने अगर ठीक से उसको सर्च में आपने उसको ये नहीं बताया, सर्च करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसको जाके पहले बताना है आप उसका लीगल सर्च कर रहे हैं, और भाई आपको एक मजिस्ट्रेट है, इसके सामने भी सर्च होने का अधिकार है, उसका अधिकार आपको बताना है उसको। और आपको उसी तरह हर चीज़ में प्रोसीजर
उसको अडॉप्ट करना है, और अगर आप ना अडॉप्ट किए तो आपको उसके जो है बड़ा भारी पनिशमेंट कई बार भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आपका ड्यूटी है या जो पावर है, दोनों ही काफ़ी हाई है। ये दूसरे लोगों से आप लोग काफ़ी ऊंचे पोजीशन में हैं अपने दायित्व के हिसाब से, और साथ में आप उतना लायबल भी है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसका जो विस्तार है ड्रग्स का, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी फील्ड में काम करना है। मुझे तो पता नहीं था जब मैंने नीमच में ज्वाइन किया। आपको मालूम होगा यहाँ का नीमच और मंदसौर, नीमच सब डिवीजन है, मंदसौर जिला है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इसी से। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया एज ASP एकदम यंग, तो मेरे को एक दिन वहाँ जो CM थे उस समय मध्य प्रदेश का, तो उनका प्लेन जो है, अपना प्लेन उनका जो था CM के लिए, वो सीधे आके पहुँचता था वहाँ, नीमच में ही उतरता था। नीमच में एयरपोर्ट नहीं था, एक छोटा एयर स्ट्रिप था, वो एयर स्ट्रिप में आके उतरता था। एक दिन उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला के अलग से ले लिया वही जहाज के पास, और मुझे बताया, 2-3 पॉकेट से एक चीट निकाला, वो 2-4 नाम दिया, बोला ये 2-3 उनके घरों पे सर्च कर लेना, देख लेना क्या है, तो इसमें जो है आपको कुछ मिलेगा करेगा, तो ये करके, और आप इसको किसी को लीक आउट मत करना, इस चीज़ को सर्च खुद करना, पता लगाना, तो ठीक है। तो मैंने आके उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिया, और लेने के बाद उन लोगों पे हमने रेड किया। रेड करके मतलब ह्यूज क्वांटिटी में हमने अफीम भी पकड़ा, साथ में भयंकर क्वांटिटी में डोडा चूरा भी पकड़ा। डोडा चूरा का पहले लाइन लग जाता था, बिल्कुल वो नीमच मंदसौर से लेके पंजाब तक, रास्ते भर में जितने ढाबे होते थे उसमें डोडा चूरा को चाय में मिलाते थे। उसमें भी नशा है, उसका की कोई पोर्शन है, उसका भी नशा है, तो वो यूज होता, वो बड़ा भारी मार्केट उसका बन गया था, वो भी चलता था। और साथ में उस समय ये सब सिंथेटिक ड्रग इतना नहीं निकला था, बहुत कम सिंथेटिक ड्रग था, LSD वगैरह ये कुछ था, बाकी अब इतने सारे सिंथेटिक ड्रग हो गए, ये नहीं था। तो उसका व्यापार उस समय इतना बड़ा चलता। तो इन सबको रेड किया, जो कि उस समय बड़े बड़े नेता थे, हमें नहीं मालूम था। अगले दिन कुछ पत्रकार हमारे पास आने लग गए, और उनका उद्देश्य क्या था, दलाली करते हैं, बने हुए हैं पत्रकार, लेकिन नाम को पत्रकार हैं, बेसिकली दलाली करते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं आपको पूछने के लिए शुरू में, लेकिन इनडायरेक्टली इधर उधर करके बात, पत्रकार हैं तो हम आने भी देते हैं, उनको सम्मान भी करते हैं, कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, कभी कभी चाय भी पिला देते हैं, क्योंकि वो हम उनको समझते हैं कि भाई ये अच्छे होंगे, और बड़े अच्छे प्रतिष्ठित पोजीशन है, अच्छे पेपर में इनका वो है, करस्पॉन्डेंट है, फलाना है, जो भी, तो उसको हम सम्मान देते थे। लेकिन वो खुद ही आके शुरू कर देते हैं आपके साथ, सीधे तो बोलेंगे नहीं, कुछ और घुमा फिरा के, सब वहाँ एक फंक्शन है उसमें आप चलें, ये करें, जो फंक्शन का थोड़ी सी हम इंटेलिजेंस लेंगे तो पता चलता है वो फंक्शन तो, अभी आप लोगों ने सुना होगा उड़ीसा में, ये ड्रग वालों ने एक फंक्शन में, एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं मनोज दास करके, मनोज दास साहब पांडिचेरी में आश्रम में थे, उनको पूरा दुनिया जानता है वहाँ पे, एटलीस्ट उस ईस्टर्न इंडिया में तो पूरे लोग जानते हैं, जिनके स्टोरीज वगैरह लोगों को इतना अफेक्ट कर, इतना सुंदर लिखते हैं, और जिंदगी भर जो है बैचलर है। तो उस आदमी को उन्होंने बुला लिया कि फंक्शन में सम्मान करने के लिए, और वहाँ बुला के 1 लाख रुपए का एक चेक उनको पकड़ा है, इसलिए कि वो चेक जो है कि हमारे तरफ से एक छोटा सा भेंट है। तो उनको क्या मालूम है, वो तो बहुत बड़े वो हैं, साहित्यिक हैं और लेखक हैं, तो उन्होंने चेक ले लिया ये समझ के कि ये सम्मान राशि में है। और बाद में आप समझें कि उस बात पे पता चला ये ड्रग वाले जो है उसमें कुछ जो मेन आदमी सामने नहीं आया, वो पीछे था, और उसने ये सब ऑर्गेनाइज करवा रहा था, और पता चला कि वो जो है मनोज दास साहब इसमें फालतू में आ गए। तो उन्होंने वो पैसा तो लौटा दिया खैर अगले दिन, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया उनके नाम का। जिंदगी भर जो कुछ उन्होंने कमाया था, यही कमाया था, उन्होंने
ड्रग लॉर्ड सरी का पैसा तो नहीं कमाया था, तो उन्होंने यही कमाया था कि अपना मान सम्मान कमाया था। 1 मिनट में इन लोगों ने उनको धूलिसात कर दिया बिल्कुल। तो इन चीज़ों का आपके नौकरी के साथ बहुत संबंध है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है इससे आपके जो सर्विस है, वो जो जॉब है, तो उसके बारे में बहुत सारी अच्छे अच्छे साहित्य है, अच्छे अच्छे फिल्म है। ये सब चीज़ों को थोड़ी बहुत आप देखेंगे तो इसका विस्तार और इसमें कितना वो इन्वॉल्व है वो आपको पता चलेगा। और उससे जो है मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जिसका शपथ लेंगे आज जो मेरा ख्याल है, तो उसमें संविधान सबसे बड़ा है। और संविधान हमारे यहाँ क्या एक बात कहा जाता है, एक और बात ध्यान रखें, क्योंकि हमने यहाँ एक केस देखा जिसमें एक इनोसेंट आदमी को फंसा दिया गया था और फंसाने के बाद वो किसी को और को बचाने के लिए उसके ऊपर केस लाद दिया गया था। ये सबसे बड़ा पाप है। और इसी के चलते हुए आप देखेंगे इसमें आगे चल के अगर आपने इस प्रकार का कोई काम किया कभी, तो अगर आप बच भी जाएं वहाँ से, इस कोर्ट वगैरह से या इस प्रोसीजर से या सामाजिक व्यवस्था से बच भी जाएं, अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी वो चीज़ बचा होगा जिसको विवेक बोलते हैं या जिसको आत्मा बोलते हैं या जिसको, तो फिर आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे में अकेले में वो आपको घेरेगा और आपसे ही पूछेगा खुद को कि तुमने ऐसा कर दिया था। इसलिए संविधान में या लॉ में भी यही कहा गया कि चाहे 100 culprits go free, scot free, but one innocent person should not be punished wrongfully. He should not be punished wrongfully. ये हमारा क्या कहते हैं फाउंडेशन है, ये हमारा फाउंडेशन प्रिंसिपल है। इसके आधार पर हमारी लॉज बनी हुई है, इसी के आधार पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी हुई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वन सिंगल इनोसेंट पर्सन should not be punished or implicated in NDPS Act at least, क्योंकि उसका गंभीर परिणाम है, तो उसको नहीं होना चाहिए। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि संविधान को हमेशा, इसलिए बहुत सारे बार कहा जाता है कि आप जब सर्विस के लिए निकलते हैं तो हाथ में NDPS एक्ट रखें, दिमाग में संविधान को रखें और अपने दिल में जो है ना वो नैतिकता को बिठा के रखें, और तब आपके जो है एक सक्सेसफुल कैरियर बनेगा। आवश्यकता के अनुसार पैसा तो आपको मिलेगा। अगर आपने थोड़ी सी ठीक से फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से किया तो आजकल के ज़माने में इतनी रास्ते हैं कि अच्छे से सही पैसा आपको काफ़ी मिल जाएगा। सेकंड, आपका हेल्थ मैनेजमेंट का है अभी देखने का, उसका भी आप अपना सरकार श्री का 5 ईयर प्लान बना लें, अगला 5 ईयर, आगे का 5 ईयर, आगे का 5 ईयर कैसा रहेगा, तो वो बड़ा काम में आता है। और एक फिर जब आप यही इंस्टीट्यूट में आएंगे आफ्टर अबाउट 25 ईयर्स या 40 ईयर, जब आपका सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली जो भी इंस्टीट्यूट करता होगा, तो उसमें जब आप सब फ्रेंड्स बैठे होंगे, सब चेहरा आपके बदल गया होगा, आपके परिवार भी बैठा होगा, तब एक दूसरे खड़े होकर सब अपना अपने बारे में बताते हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो अकाउंट देंगे, वो बड़ा रोचक रहेगा। और मैं चाहता हूँ उस समय आप अपने आप को गर्व से अपना माथा ऊंचा करके सीना तान के बैठ सके। मुझे ये मौका दिया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। Rightly said, sir. Basically, your character defines who are you, and your attitude determines how far you go. That was the gist of the sir's speech, and he has given us so much. He has shared the lengthy experience with you. We are thankful to you, sir, that you have spent time for the academy and for honoring this event, sir. Now, moving ahead, it's time for certificate distribution. Now, I will request Mr. Saib to come over the stage and call the names of person, and both the dignitaries I will request you to come on the
to distribute the certificates. राहुल कुमार शाह, सरदार राहुल का है। समृद्ध संसार, अभिमन्यु कुमार, सत्यम कुमार, सुमित कुमार, कृष कुमार। सर, ये जितने भी कुमार हैं सब बिहार से हैं। हर्षित गौर, हेमंत कुमार चंदलिया, साहित्य, दीपक सिंह, जयदीप, सचिन कुमार, राजू कुमार, जागृति, लोहित भी, मेघना, अंकित मीना, प्रतीक, वैभव, रोहित गायकवाड़, हरसिमरन पाजी, ग्रुप का एक सरदार और फोर्स लीडर, प्रवीण सिंह तलावत, विपुल गजरा, उपेंद्र, हितेश, संपेली साई सूरज, प्रशांत भूटिया, हिमांशु प्रताप, अंकित कुशवाहा, सौरभ सिंह, धर्मेंद्र कुमार,
गौरव शर्मा, अनुराग चौहान, दीपक कुमार शर्मा, विपिन यादव, ज्योति, आशीष कुमार श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार, अतुल वर्मा, अमित मटपाल, अंकित मंडल, नवनीत यादव, तूफान कांति बनर्जी, अनिर्बान साहा, पार्थजीत सरकार, तरुण मंडल। अब बारी है ट्रॉफी की। पीपीटी में जो प्रथम आए हैं वो है अंकित कुशवाहा और हिमांशु, दोनों का 46 नंबर है, दोनों प्रथम है, इनके लिए जोरदार तालियां। अंकित कुशवाहा और हिमांशु। पीपीटी में सेकंड आया है अंकित मीना। ड्रिल में जो प्रथम आया है वो सचिन। सचिन ड्रिल प्रॉपर ड्रिल में है ना, जब ड्रिल में प्रथम आए हो तो दिखा दो कि तुम बाकी में ड्रिल करते हो, बहुत बढ़िया। ड्रिल में सेकंड विपुल गजरा। रिटर्न में जो फर्स्ट है रोहित गायकवाड़। सेकंड हर्षित गौर। आइए हर्षित। फर्स्ट पोजीशन इन फायरिंग अगेन विपुल गजरा, द बेस्ट फायरर। सेकंड समृद्ध संसार। समृद्ध हो गया। नाउ इट्स टाइम टू ऑल राउंड बेस्ट अवार्ड गोज टू रोहित गायकवाड़। 786। अब मैं हमारे एकेडमी की तरफ से जो हमारे ऑफिसर्स जो इस ट्रेनिंग में जुड़े रहे सीधे तौर पर
उनके लिए जो अप्रिसिएशन वो है सबसे पहले ममता कोई बात नहीं। होशियार सिंह, हमारे हवलदार होशियार सिंह, जिन्होंने 6 महीने की अथक सेवा से इस प्रशिक्षण को संपन्न कराया। होशियार सिंह, जोगिंदर, लगातार 6 महीने कोच के साथ में रहकर उनको चलना सिखाया, उनको खुद से ट्रेनिंग कराई। होशियार जोगिंदर सर। सन्नी, इनको न केवल बाहरी प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया, बल्कि बीमार होने पर इनको दवाइयां देकर इनका स्वास्थ्य भी सही किया। सन्नी। श्री राजू मीना, ड्रिल सेक्टर और फील्ड सेक्टर। सुनील कुमार यादव, इस प्रशिक्षण में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर समस्त कार्यवाही का निर्वहन करने के लिए इनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। श्री मुकेश लांबा, आईटी कंप्यूटर की फैकल्टी, जिन्होंने इनको कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में बताया। परवेज आलम कभी आप ले लो लामा जी। रंजीत सिंह, प्रशिक्षण में लगातार क्लास में समस्त संसाधनों को पूर्ण करना, क्लास की तैयारी करना, उसके लिए एडम साहब की तरफ से सरदार सिंह। पलानी वेल, विपिन तिवारी, हमारे सीएपीटी स्टाफ की इन हाउस फैकल्टी आईपीएस रिटायर्ड जेडी श्री एलन सिंह, जो इंडोर एग्जाम के प्रभारी भी थे, इनके प्रोत्साहन स्वरूप इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मनीष कुमार, फायरिंग के दौरान, वेपन्स के सिखलाई के दौरान हथियार को सही करना, उनकी हैंडलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना, फायरिंग के दौरान इनको सिखलाई देना। इसमें हमारे सीएपीटी स्टाफ को आईटीबीपी के आर्मोरा इंस्पेक्टर वजीर साहब ने बहुत सहयोग दिया। इनके प्रोत्साहन से वजीर सिंह साहब को प्रोत्साहन दिया जाता है। आउटडोर टीम में एग्जाम के सहायक श्री राजेंद्र सिंह, एएसआई सीएपीटी। एनसीबी प्रशिक्षणार्थियों को वेपन हैंडलिंग और फायर करना सिखाने के लिए एसएसबी के 3 उस्ताद जो आए थे यहाँ पे, इसमें प्रधान रक्षक कृष्णा बोरसे, इनका जोरदार स्वागत करिए। ये टाइम में आ रहे हैं कि हथियार कैसे पकड़ना है, ये इन्होंने सिखाया। दिनेश कुमार भट्ट, एससी और वेपन हैंडलिंग इंस्ट्रक्टर, एसएसबी के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार।
एनसीबी की ओर से सीएनसी के अंतर्गत हमारे सीएपीटी अकादमी में पदस्थ श्री सिमरन पॉल, जिन्होंने इनको एनडीपीएस का ना से लेके सा तक सिखाया है, श्री सिमरन पॉल, सुपरिटेंडेंट एनसीबी। श्री अमित खरे, फैकल्टी, देश की अग्रणी प्रशिक्षण संस्था से हमारे इन एनसीबी प्रशिक्षणार्थियों को न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में पढ़ाने के लिए की फैकल्टी मेंबर फॉर लॉ, पार्टिकुलरली द न्यू क्रिमिनल लॉज, ब्रिंगिंग क्लैरिटी, डेप्थ एंड practical insight to the NCB suspectors trainees. She is widely appreciated for the trainee-oriented approach and subject expertise. Last year as well, she was honored as the best law faculty, and this year also she has continues the legacy with the same dedication and excellence. Her session have consistently strengthened the trainees' understanding and confidence in applying criminal law reforms in the field. She has made significant contributions to the academy and is known for always giving her very best in every academic role and responsibility. Thank you, Ms. Sana Mansoori, for Faculty of Law Mansoori. अजय शंकर का भी आप ले लीजिए। सना एक कॉन्स्टिट्यूशन की फैकल्टी, वो भी लवासना से आई थी सर हमारे यहाँ, जिन्होंने इन बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, श्री अजय शंकर। उनका सर्टिफिकेट में मैं जो नाम अनाउंस करने जा रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा, जब ये डिसाइड हुआ था कि बेसिक ट्रेनिंग विल बी इम्पॉर्टेंट टू द एनसीबी ट्रेनिंग्स फॉर 5 मंथ, तो डीआईजी सर के चैम्बर में मीटिंग हो रही थी और ये सबके सामने चैलेंज था, हु विल डू दिस, हु विल बेल द कैट। उसके बाद साहिद साहब का नाम आया और ये हुआ कि नहीं 5 महीने का कोर्स है, हम लोग जनरली ना 3 to 5 days के कोर्सेज वी आर रनिंग हियर। तो साहिद साहब ने जिस सफलतापूर्वक जिस तरह से चलाया, मेरा उनको साधुवाद है। आई थिंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स आल्सो विल एग्री कि जैसे सर अभी साहिद साहब को पुरस्कार दिया जाए। इंस्पेक्टर करनी सिंह, थैंक यू साई साहब। अब मैं शपथ के लिए सभी ट्रेनिंग से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ में शपथ को रिपीट करें। मैं के बाद अपना नाम बोलेगा और इस तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे। हाथ आप सामने कर लें। मैं नाम बोलिए। शपथ लेता हूँ दृढ़ता से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत तथा कानून द्वारा यथा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति वफादार और सच्ची निष्ठा से रहूंगा तथा मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करूंगा। बैठ
सर ये प्रोग्राम का अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए आगे अब लास्ट में मैं फिर दोबारा मिस्टर साइज से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट को एक मोमेंटो प्रदान करें अकेडमी की ओर से। विशेष अतिथि को मोमेंटो प्रदान करें। ये गौरतलब बात है कि आपकी तालियों ने जाहिर कर दिया हमारा कि सपोर्टिंग स्टाफ कितना चर्चित या पॉपुलर रहा है आपके साथ में। बिल्कुल ये साबित हुआ है। अभी लास्ट में मैं परेड के अंतिम मूवमेंट की तरफ मूव करते हुए मैं निसार टोली ध्वज टोली अपनी जगह ले और अभी कार्रवाई करें। ध्वज टोली अपनी जगह ले। धन्यवाद सर। यहीं पर इस कार्यक्रम समापन होता है। अभी मैं सभी पार्टिसिपेंट और अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करूँगा फोटोग्राफ के लिए, सभी फोटोग्राफ के लिए चले उसके